Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में and today what are we gonna do? So we are going to discuss 20 marks guaranteed questions from these 5 topics from chemistry. 20 marks guaranteed है अगर आज आप सबने ये सेशन अच्छे से पूरा एंड तक देख लिया. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैड अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स. लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. Okay, before that students, let me tell you a very important thing. So we have this MVSAT which is Mega Vedantu Scholarship Admission. So as you all know already कि offline की dates खत्म हो चुकी हैं, right? But still we have this golden opportunity to register yourself in the online for the online segment. Make sure you definitely grab this opportunity, and if you have missed the dates for the online test, you can register yourself. The link is available in the description box. So go and definitely check it out. Okay, so good to go. Let's proceed. Okay, so since this is the first session that I'm actually having with all my Protons Army, let's start today's session with a very optimistic quote that we have over here. Okay, so we have optimism is the faith that leads to achievement, which is very true. You need to be positive. You need to believe in yourself when you're preparing for your exams. Definitely. Nothing can be done without hope and confidence. Yes, you need to believe in yourself. You should hope that you will definitely come out with flying colors in your exams. Isn't it, my dear Protons Army? So keep working really hard that you always were doing, and you will definitely come out with flying colors. और आज के सेशन में वैसे भी 20 मार्क्स तो गारंटीड होने ही वाले हैं from these 5 topics. Okay, so let's proceed ahead. Okay, also students, to get more of chemistry content, you can actually follow me on Instagram and Telegram as well, so that you don't miss out the important updates and topics as well. Okay, chalo. So let's start the session with a very we can say chemistry related meme or question. ठीक है? So I have a very interesting question over here for all of you. If bananas were to have a chemical formula, what would it be? सोचो और बताओ. You can pause the video. So we will discuss this answer towards the end of this session. Very interesting. Yes. If bananas were to have a chemical formula, what would it be? ठीक है? We will discuss the answer towards the end of the session. चलो अब start करते हैं the first very important topic, जो कि आप बोल सकते हो language of chemistry है ना? That is the language of chemistry. Now, जब हम इंग्लिश का लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें ऑब्वियसली अल्फाबेट्स पता होने चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है इससे क्वेश्चंस आएंगे ही, दैट इज केमिकल फॉर्मूला, है ना? सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए, करेक्ट सिंबल्स, और फॉर्मूला कैसे बनेगा दैट ऑल्सो शुड बी नोटेड वेरी वेल, है ना? तो इससे गारंटीड क्वेश्चन आएगा. Now students, as I have said, the first thing which we are going to discuss is chemical formula. अब chemical formula के लिए सबसे basic चीज जो पता ही होनी चाहिए वो क्या है? सिंबल पता होनी चाहिए, है ना? सिंबल के अलावा वैलेंसी पता होनी चाहिए, है ना? Then you cross multiply and then you get the chemical formula. ठीक है? चलो let's revise. So the first example you see is the formula of hydrogen chloride, है ना? So what is the symbol? The first step that you actually do while writing down any specific chemical formula, कि आपको first चीज पता होनी चाहिए, that is symbol, ठीक है? दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए वो है वैलेंसी, है ना? और थर्ड स्टेप में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो symbol of hydrogen is H, which is here. For chloride ion, it is Cl.
ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि आई हैव नोटिस्ड ऑल्सो कि मैनी स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि कुछ एलिमेंट्स का अगर सिंबल में 2 लेटर्स हैं तो या वो दोनों लेटर कैपिटल लिख देंगे या तो दोनों लेटर स्मॉल लिख देंगे। तो भाई सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स भी जरूरी है, तो C कैपिटल होगा, L होगा स्मॉल, ठीक है। अब वैलेंसी, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फॉर्मूला बना रहे हो, वैलेंसी जब आप लिखते हो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का, उसमें चार्ज नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो चार्ज व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द वैलेंसी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, फॉर क्लोराइड ऑल्सो इट इज 1, देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया, H मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी H एंड क्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी Cl ओनली। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा HCl। बड़ा इजी एग्जाम्पल था, है ना। फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। ऑल क्लियर, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। हाइड्रोजन से ही रिलेटेड एक दूसरा कंपाउंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड, सिमिलरली हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सल्फाइड IDE उसकी वैलेंसी है 2, ठीक है। देन व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये H को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, तो वो होगा H2 आएगा आपका हमेशा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। एंड देन यू हैव सल्फाइड, तो क्या बन गया भाई फॉर्मूला H2S, that is the formula of hydrogen sulfide. I hope it's clear to all of you. Yes, and आप साथ ही साथ सब लिख रहे हो ना, मैम जो समझा रही है वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, केमिकल फॉर्मूला से क्वेश्चंस आने ही हैं, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड अहेड, एक और एग्जांपल देख लें। यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4, ठीक है। कार्बन का सिंबल है C, ठीक है। टेट्राक्लोराइड मतलब कि 4 क्लोराइड आयंस है, ठीक है। नाउ कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ठीक है, उसकी वैलेंसी है 4, प्लस माइनस आपको नहीं लिखना है, ठीक है। क्लोराइड की वैलेंसी 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया भाई फॉर्मूला CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अब मैम ने थोड़ा रिवीजन करा ही दिया केमिकल फॉर्मूला लिखने का, तो थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ले, देखते हैं किसको कितना समझ में आया, ठीक है। सो मैम हैज दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चंस, अमेजिंग क्वेश्चंस ऑन केमिकल फॉर्मूला। चलो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग दीज, ठीक है। सो मैम भी ऑब्वियसली हेल्प करेगी, फर्स्ट सेशन है तो थोड़ा बहुत हेल्प तो करना बनता है ना। सो वी हैव द फर्स्ट वन विच इज अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज जो मैं भी जब छोटी थी, जब मैं एग्जाम देने जा रही थी, इजी फॉर्मूला बनाने देते ही नहीं है एग्जाम में, दिल ट्राई टू कंफ्यूज यू, बट कंफ्यूज नहीं होना है ना। सो द फर्स्ट वन इज अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम का सिंबल क्या है NH4, ठीक है। सल्फेट यहाँ पे देखो ATE है, तो इसका है सिंबल SO4, ठीक है। अब बता दो अमोनियम की वैलेंसी क्या है, अमोनियम की वैलेंसी है 1 मैम, ठीक है। सल्फेट की वैलेंसी क्या है, सल्फेट की वैलेंसी है 2 मैम। अब क्या करेगी मैम, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाइड। चलो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, NH4 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे हम NH4G को हम बोलते हैं, आप ब्रैकेट में रह लो, यहाँ पे हमने लिखा 2 और SO4। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला अमोनियम सल्फेट का, विच इज NH4 होल ट्वाइस, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखा है 2। So this is the formula of ammonium sulfate. All clear my protons army? चलो let's proceed ahead with the second one, ठीक है।
एंड मैम ही बस सॉल्व नहीं कर रही, आप लोग भी आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक और सॉल्व करो, क्योंकि मैम आपकी हेल्प यहाँ कर रही है बेटा, एग्जाम्स आपको देने हैं, है ना। तो वी हैव कैल्शियम नाइट्राइड। अब कैल्शियम का सिंबल होता है CaMm, ठीक है। नाइट्राइड IDE, नाइट्राइड, नाइट्राइड N, ठीक है। Now what is the valency of calcium? Valency of calcium is 2 ma'am. What is the valency of nitride? The valency of nitride is 3. अब सबसे इजी काम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो सुंदर सा फॉर्मूला तैयार हुआ दैट इज Ca3N2. So this is the correct formula for calcium nitride. आ गया सबको समझ में, ठीक है। कितने सुंदर लग रहे हैं फॉर्मूला, देखो। यस, आप लोग भी कॉपी में यू कीप राइटिंग इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। चलो C और D कर लोगे, C और D कर लोगे एवरीवन। सोडियम बाइकार्बोनेट, चलो एक और बता देती हूँ, ठीक है, वरना बोलोगे मैम पहले ही क्लास में आप हेल्प नहीं कर रहे हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा थर्ड वाला बता दिया जाए आप लोगों को, है ना। चलो मैम विल हेल्प यू, ठीक है। थर्ड है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को इट कैन बी गिवन इन योर एग्जाम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, ठीक है। लोगों का काम ही है कंफ्यूज करना, ठीक है। सोडियम Na, ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3। अब जल्दी से बता दो सोडियम की वैलेंसी क्या है, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या है। सोडियम की वैलेंसी क्या है, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या है, 1 1। सही लिखा है मैम ने, सोडियम की वैलेंसी 1 है, बाइकार्बोनेट की भी वैलेंसी 1 है, ठीक है। नाउ व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, देखो अब Na का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1 से, तो मैं Na नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 लिखूं, इससे अच्छा है भाई 1 को लिखूं ही ना। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, NaHCO3, ठीक है। क्योंकि Na का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 1 से, तो मैंने उसको Na ही लिख दिया, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट की अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन भी 1 से हो रहा है, तो मैंने HCO3 ही लिखा, ठीक है। इसकी जगह अगर 2 से होता मल्टीप्लीकेशन या 3 से होता तब कोई फायदा होता भाई कि हमने 2 या 3 सबस्क्रिप्ट पे लिखा है। यहाँ पे सिंपली इसका 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसका भी 1 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सो इट इज NaHCO3, ठीक है। ऑल क्लियर माय प्रोटॉन्स आर्मी। चले अब लास्ट वाला कर लेना यार, ठीक है। बेरियम सल्फाइड, 3 बता दिया मैम ने, एक आपको करना है, बेरियम सल्फाइड, ठीक है। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो ये एक टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला सिंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पक्का से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। लेट्स प्रोसीड अहेड। ये चीज देखो, ये हमने अभी डिस्कशन कर लिया, ये आंसर्स हैं। अब देखो लास्ट वाला का भी मैम ने आपको आंसर बता दिया, अब थोड़ी मेहनत कर लेना, सिंबल लिख लेना, वैलेंसी लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना एंड देन यू गेट द फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर, ऑल क्लियर। चलो नाउ we have covered the first very important thing, that is कि chemical formula से तो भाई questions आने ही हैं। Now the second very very important topic जिससे भी questions आते हैं, that is electronic configurations and valency, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप हायर ग्रेड्स में भी जाओगे 11th-12th में तो इसमें एक डिटेल्ड चैप्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली के टाइम हमारा क्या वो होता है कि हम मिठाइयाँ बांटते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या चीज़ बांटी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये लिखा होगा एनसीईआरटी में, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। भाई समझ लो जो समझना है, थोड़े से इजी तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि इन द केस ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होता है, तो वैलेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है कोई भी एटम की, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी लॉस्ट
और gained to attain stability, ठीक है। अब एटम्स को भी स्टेबल होना है, तो उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि गेन या लूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। और वैलेंसी पे कभी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बताओ सोडियम की वैलेंसी क्या है, हाँ, सोडियम की वैलेंसी क्या है, तो सोडियम की वैलेंसी है 1, ठीक है। क्लियर एवरीवन, माय प्रोटॉन्स आर्मी। लेट्स प्रोसीड अहेड। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया गया है सिंबल, ठीक है। एटॉमिक नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है, न्यूट्रॉन्स दिया है, इलेक्ट्रॉन्स दिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है डिफरेंट शेल्स में। नाउ ये जो डिफरेंट शेल्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ठीक है। और वो लास्ट वाले डब्बे में क्या दी गई है भाई, वैलेंसी दी गई है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ध्यान दे दो यहाँ पे। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल है H, ठीक है, प्यार से हम इसे H लिखते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब भाई मैम एटॉमिक नंबर क्या होता है, पढ़े होगे है ना, चलो थोड़ा सा मैम बता देगी। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 1, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1, ठीक है। तो ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए आपके 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए आपके 1, ठीक है। क्लियर एवरीवन। नाउ अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करना है ना, अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट शेल में, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई, तो फिर ये फर्स्ट शेल में ही कंप्लीट हो जाएगा, के शेल में इट विल बी हैविंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है और मैंने बोला कि भाई इसे भी तो स्टेबल होना है। अब स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन भैया क्या करें, स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन भैया बड़े दिलदार होके एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दे देते हैं, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है समझने का, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। सिमिलरली यू हैव अनदर सेट ऑफ एलिमेंट्स, नेक्स्ट है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सो 1 से लेके 10 तक आपको दिया गया है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके अलावा आपको सबका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी आपको दी गई है। तो वैलेंसी में बच्चों कभी चार्ज नहीं होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, वैलेंसी में चार्ज नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि सोडियम की वैलेंसी क्या है तो बोलोगे 1 मैम, मैग्नीशियम की क्या है तो बोलना 2 मैम, ठीक है। यस, क्लियर एवरीवन। तो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, वो देख लेते हैं जरा, है ना। अब वो तो 10 तक था, अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, मतलब आपको टोटल 18 एटॉमिक नंबर तक दी गई है चीजें, उसकी वैलेंसी आपको दी गई है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एक इन्फरेंस, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आनी ही चाहिए वो है एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आपको वैलेंसी पता चल जाएगी सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आपको वैलेंसी पता चल जाएगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्या पढ़ा, भूलते नहीं जाना है, ठीक है। मैम पढ़ा रही है तो दिमाग में सारी चीजें इकट्ठा करनी है, पेपर में लिखना है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाली हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज केमिकल फॉर्मूला,
second thing which is very important, electronic configurations and valency. ठीक है, all clear? इससे भी क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि जब हम नोबल गैसेस के बारे में बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में अगर कुछ चीजें आपको याद होंगी, ग्रुप 18 वाली नोबल गैस फैमिली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। सो नोबल गैस भाई बड़े आलसी होते हैं, उनके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी है, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? 0। उनकी वैलेंसी होगी 0। चलो आर्गन को ही देख लो, ठीक है। आर्गन जो है इट बिलोंग्स टू द नोबल गैस फैमिली। अब आर्गन का सिंबल पहले देख लिया जाए, क्या है मैम? AR मैम, ठीक है। अब यहाँ पे इसका दिया हुआ है आपको एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाउ 18 इज इट्स एटॉमिक नंबर, तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो आपके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल में 2n² रूल के हिसाब से फिल करना है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8, ठीक है। अब लास्ट शेल में तो भाई इसके पास है ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया ये आर्गन भैया, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी 0, ठीक है। वैलेंसी हो जाएगी नोबल गैसेस की 0। इज दैट क्लियर टू माय प्रोटॉन्स आर्मी? सबको समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे ही, लिख के ले लो, ठीक है। चलो अब थोड़े क्वेश्चंस कर ले, मैम ने गला चीख चीख के पढ़ा दिया, तो थोड़ा देख लेते हैं प्रोटॉन्स आर्मी को समझ में आया कि नहीं आया। Define valency by taking examples of silicon and oxygen. अब आपको वैलेंसी डिफाइन करनी है, 2 एलिमेंट्स का नाम आपको दिया गया है, एक हो गया आपका सिलिकॉन, एक हो गया आपका ऑक्सीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। मैम नहीं आएगी एग्जाम में, है ना। सिलिकॉन, ठीक है, Si, और है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है ये दोनों के एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स को लेके, ठीक है। अब मैंने एक फैंसी सा डेफिनेशन दिया था, व्हाट एग्जैक्टली इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है। तो वो ही एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी लॉस्ट और गेन्ड बाय एनी पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। अब मेरे को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर है 14, तो इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? एटॉमिक नंबर 14 है, मतलब सिलिकॉन भैया के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इन्हें भी चाहिए स्टेबिलिटी, है ना। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें, बताना मैम ने सही लिखा है या नहीं। 2,8,4 टोटल हो गए 14, 2,8,4, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, अगर सिलिकॉन भैया को स्टेबल होना है, मतलब कि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये कंडीशन है ऑक्टेट रूल से, ठीक है, कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए लास्ट शेल में। तो क्या करेगा ये? इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये बड़े दुख से डोनेट कर सकता है, और इस दुख के बदले में सुख ये मिल रहा है कि ये भैया जी स्टेबल हो जाएंगे, isn't it? This particular element will get stable, ठीक है। तो इट्स वैलेंसी वी लिख रही हूं, ठीक है, तुम पूरा वैलेंसी लिखना, will be 4, वैलेंसी will be 4, ठीक है। अब लेट्स प्रोसीड अहेड। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, which means the total number of electrons which oxygen is having is also 8, है ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, मैं मतलब कि ऑब्वियसली करना पड़ेगा ही, क्योंकि इन्हें भी स्टेबिलिटी चाहिए ना भाई, है ना। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6, ठीक है। अब ऑब्वियसली दिस ऑल्सो वॉन्ट्स टू अटेन स्टेबिलिटी, इसे भी तो स्टेबल होना है, ठीक है।
तो अब इसे स्टेबल होना है, विच मीन्स इट शुड ऑल्सो हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टेबल होना है, इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन भैया एंड हीलियम भैया, उनके लिए ड्यूप्लेट रूल रखते हैं भाई, वो अपने मन की करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे स्टेबल होना है तो इसे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो हो जाएगा ये स्टेबल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, यस, वही मैम ने समझाया था, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और यू कैन से द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एनी पर्टिकुलर एटम कैन लूज और गेन इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, सिलिकॉन की वैलेंसी हो गई 4। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो लेट्स प्रोसीड है, देखा जाए क्या लिखा गया, थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान दे देंगे। ठीक है, नाउ वैलेंसी, ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है आपके साथ कि वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये अगर आपको पूछेगा व्हाट एग्जैक्टली इज वैलेंसी, ये लिख के आना। ठीक है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। It is determined by the number of valence shell electrons present in the atom. Obviously, अगर मैं stability की बात कर रही हूँ तो जितने भी reactions होंगे, जो भी loss और gain होगा, वो last वाले shell से ही होगा, और last वाले shell को ही तो हम valence shell कहते हैं, क्या है ना, isn't it? So that is the concept about valency. ठीक है, now ये एक चीज है, ये दिस थिंग ऑल्सो शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये चीज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई हम, है ना। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, ये चीज नोट कर लो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन है या 4 के बराबर है, it is less than 4 or equal to 4, then the valency will be the same as the number of electrons present. तो इस केस में वैलेंसी सेम होगा। ठीक है, if the number of valence electrons is more than 4, then the valency is 8 minus the number of valence shell electrons. ये एक केस हो गया कि if the number of valence electrons is 4 or less than 4, तो जो वैलेंसी होगी that will be equal to the total number of electrons which are present. ठीक है, एक दूसरा केस ये हो गया कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी आप कैलकुलेट कैसे करोगे, अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 तरीके बता दिए हैं मैंने। ठीक है, अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,4। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट वाले इसमें आ जाता है भाई कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ईदर 4 और लेस देन 4, तब उसकी वैलेंसी भी सेम हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब 4 से अगर ज्यादा है, जो कि ऑक्सीजन भैया के केस में है, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आप देखोगे 4 से ज्यादा है, तब आप उसको 8 से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, 8 minus 6 that gives you the valency as 2. ठीक है, ऑल क्लियर? 2 तरीकों से मैंने बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आने ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, वैलेंसी हो गया। ठीक है, माय डियर प्रोटॉन्स आर्मी डूइंग ग्रेट, ये लिख लेना पॉज करके वीडियो। ठीक है, जरूर से लिख लेना। ठीक है, मैम इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के पढ़ा रही यार, पढ़ लो, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, लेट्स प्रोसीड अहेड। ओके, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन भाई, ये आएगा मजा, अब तो अभी आएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, हिंदी में भी बता दिया जाए। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, कोई भी एक पेयर ऑफ आइसोटोप का और कोई भी एक पेयर आइसोबार का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो तभी बनेगा जब पता होगा कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। वो पता ही नहीं है तो फिर 0 अंडा, है ना, ये नहीं लाना है। ठीक है, तो you have to write down the electronic configuration of isotopes and isobars. You can pause the video and also try to answer it. Also, if you have understood everything that we have discussed so far, please like, share
कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। तुम्हारे दोस्तों को सबको पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ भाई इतने अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन वाज कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, कोई भी आइसोटोप, एक पेयर ऑफ आइसोटोप का, एक पेयर ऑफ आइसोबार का, ठीक है जी। चलो अब आइसोटोप क्या होता है मैम, ये अलग सा क्या है, पढ़े हो, आइसोटोप क्या होता है। नाउ आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा लिख दे मैम यहाँ पे कि आइसोटोप्स में क्या होता है, वी हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, ऑल गुड, ये लिख लेना यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोटोप्स आर एक्चुअली द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखो कार्बन का, ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है ना, सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि ये ऊपर में जो लिखा हुआ है, ओके, ऊपर, ठीक है, ऊपर इन द एयर जो लिखा हुआ है 12 और 14, ठीक है, दैट इज मास नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये दोनों का देख लो, सेम एटॉमिक नंबर हो गया ना यहाँ पे कार्बन का, ठीक है, मास नंबर दैट इज रिटन इन द एयर दैट्स डिफरेंट, 12 और 14, तो ये हो गया आपका आइसोटोप्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब दोनों कार्बन का जो कि हमने यहाँ पे देखा कि एटॉमिक नंबर सेम है, अब भाई एटॉमिक नंबर सेम है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो सेम होंगे, है ना, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, राइट, फॉर C12, and then this for this one also it will be 2,4, okay। जनरली कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, 12, 13 और 14, C12, C13, C14, ठीक है। तो ये हो गया सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया आपका आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। आइसोटोप्स आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अब दूसरा सा फैंसी सा वर्ड क्या दिया गया था आपको, आइसोबार्स के बारे में, है ना, आइसोबार्स। तो जब भी आपको एक स्टेटमेंट देख रहे हो उसमें कोई एक वर्ड ऐसा बड़ा अटपटा सा लग रहा है, कुछ फैंसी सा लग रहा है, वो पढ़ लेना, ठीक है, वो ना अंडरलाइन कर लेना, उससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आइसोबार्स, अब आइसोबार्स ना आइसोटोप्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आइसोबार में, दे आर हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है, they are having same mass number, okay, but they are having different atomic number, ठीक है, they are having different atomic number, ठीक है। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये दोनों exactly opposite हैं of each other. In the case of isotopes you have same atomic number, different mass number. In the case of isobars you have same mass number, different atomic number. तो एक काम करना है, आइसोटोप के बारे में पढ़ लेना, आइसोबार में जस्ट ऑपोजिट कर देना डेफिनेशन को, ठीक है। क्लियर माय प्रोटॉन्स आर्मी। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जब आइसोबार्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो वी हैव टेकन कैल्शियम एंड आर्गन, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं कि ये कैसे आइसोबार है। अब देखो इनका एटॉमिक नंबर तो अलग है भाई, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। अब whatever value is written in the air, ऊपर ऊपर उसे हम मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम और आर्गन दोनों का मास नंबर सेम है, दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोबार, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मेरे पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, 2, 8, 8, 2, 2 plus 8 is 10, 10 plus 8 is 18, 18 plus 2 is 20, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम। भाई एक काम तो हो गया। चलो अब आर्गन, ठीक है। नाउ
ये होगा आपका 18, ठीक है, गलती माफ की जाए, ओके। तो आर्गन का अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 2,8,8, इट्स अ नोबल गैस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 18, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,8, क्लियर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नोट इट डाउन, you can pause the video, note it down, and this was the difference between isotopes and isobars. Clear everyone? चलो let's proceed. Okay, चलो ये करके दिखाओ, which of the following is the electronic configuration of magnesium, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कैसे होगा अगर एटॉमिक नंबर पता ही नहीं है तो, है ना। तो एटॉमिक नंबर बताओ मैग्नीशियम का क्या है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है, यस। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन आई राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, इट इज 2,8,2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि मैम ही सारा मेहनत कर रही है, तुम भी करो, ठीक है। यस माय प्रोटॉन्स आर्मी एंड आई बिलीव दैट यू आर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ये बड़े ही बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे आपको क्वेश्चंस फेंके जाएंगे एग्जाम्स में डेफिनेटली, ठीक है। यू कैन थैंक मी लेटर माय प्रोटॉन्स आर्मी, ठीक है। चलो सो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर हो गया 12, अब एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 12। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,2, क्लियर एवरीवन। चलो लेट्स प्रोसीड अहेड, ओके। ये डिस्कशन कर लिया, हाँ। अब भाई 2 चीज पढ़ ली, ठीक है। अब तीसरी चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, ये भी आते ही हैं। नाउ सबसे पहले जो चीज आपको निकी मैम बताएगी कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में डिफरेंस क्या है। भाई दोनों में तो ऐड ही करते हैं, तो डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली डिफरेंस है, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर मास मतलब कि आप किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक, चलो CH3OH, ठीक है। अब मेरे को अगर CH3OH का मास कैलकुलेट करना, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसकी कंस्टिट्यूएंट चीजें हैं कार्बन, हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, यस। अब आपको क्या करना है, कार्बन का मास आपको ऐड करना है, 3 हाइड्रोजन का मास ऐड करना है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का मास ऐड करना है और एक हाइड्रोजन का मास आपको ऐड करना है, ठीक है। अब मेरे पास एक ही कार्बन है तो 1 कार्बन और उसका मास कितना है 12, ठीक है। अब हाइड्रोजन 3 है टोटल, उसका मास है 1, ठीक है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। एक ऑक्सीजन है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है। और हाइड्रोजन लास्ट में फिर एक है तो एक ही हाइड्रोजन है भाई और एक ही है उसका मास। टोटल व्हेन यू एड इट दैट विल बी 32U, ठीक है। अब आप मास जब कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो SI यूनिट भूल के मत आना, यू हैव टू राइट इट एज U, ओके, दैट इज द SI यूनिट। इनिशियली AMU था, अब इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U व्हिच इज यूनिफाइड मास, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन। अब मैम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट एडिशन से ऐसे होता है, फॉर्मूला मास का भी कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, लेकिन फॉर्मूला मास में क्या होता है, जैसे कि मैंने ले लिया एक कंपाउंड NaCl, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास में हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास ऐड करके कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यस माय प्रोटॉन्स आर्मी। अब फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। NaCl is an example of a ionic compound, ठीक है। Now इसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स और डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है Na+ और Cl-, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आयनिक कंपाउंड्स जिनका एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर होता है, इन दैट केस वी से फॉर्मूला मास, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं,
ठीक है। सो फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला मास। हालांकि आप मॉलिक्यूलर मास को भी सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला मास को भी सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आ गया समझ? हाँ यस, जैसे कि अगर मैं ले लूँ NaCl, ठीक है। अब NaCl का मैं कैसे फॉर्मूला मास कैलकुलेट करूंगी? सोडियम का होता है 23U प्लस क्लोरीन इज 35.5U, ठीक है। तो ये आई थिंक हाँ आपका आएगा 58.5U, ठीक है। ये U है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ भाई वरना आप हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक है। U, प्यारा सा U, ठीक है। तो ऐसा यूनिट मत छोड़ देना, है ना। सो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ऑल क्लियर माय प्रोटॉन्स आर्मी? यस। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले, है ना। अब आपको फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है कैल्शियम नाइट्रेट का और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है CH3OH का, ठीक है। ये वाला तो मैंने किया है भाई अभी कैलकुलेट, ठीक है। अगर समझ में आया होगा, लिखा होगा तो फिर बढ़िया बात है ना। एंड द फर्स्ट वन इन दैट यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। उसमें यू हैव वन cation, वन anion, कैल्शियम इज द पॉजिटिव पार्ट, नाइट्रेट इज द नेगेटिव पार्ट, ठीक है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट, इससे भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। न्यूमेरिकल से डर लगता है? हाँ, न्यूमेरिकल्स से डर लगता है अगर तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो चीज़ें, ठीक है, डर भगाना चाहिए। चलो अब कैल्शियम नाइट्रेट वाज द फर्स्ट पार्ट विच इज CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। हमारे पास एक कैल्शियम है, ठीक है। नाउ कैल्शियम का मास है, सिंस हमारे पास एक कैल्शियम है, मास होता है उसका 40 AMU और 40.08 मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। अब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 40.08 AMU, ठीक है, AMU इनिशियली, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय N, ठीक है। नाउ ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है आपका दो नाइट्रोजन है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 14.01 AMU विच गिव्स यू 28.02 AMU, ठीक है। अब हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 96 AMU, ठीक है। ये बड़ा इजी लग रहा है, ऐसे एग्जाम में ना दिक्कतें आती, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। व्हेन यू ऐड इट ऑल टुगेदर यू गेट 164.10 AMU, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ठीक है। चलो now we have the next one in which you have to calculate the mass of CH3OH, ठीक है। Now here you can see you just have one carbon, तो 1 multiplied by 12 that gives you 12, ठीक है। हाइड्रोजन 4 multiplied by 1 that gives you 4 and oxygen 1 multiplied by 16 that gives you 60, ठीक है। Now when we are talking about ग्राम molecular mass और ग्राम मोलर मास, तब आप वहाँ पे ग्राम लगाना, ठीक है। मोलिकुलर मास दिया गया है then you can put 32U, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ ग्राम में दी है so that is ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, तब वहाँ पे G लगता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? Yes, so this is how we calculate it. I hope it's clear to all of you. Yes everyone? चलो let's proceed ahead. ओके नाउ ये पार्ट, ठीक है, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पार्टिकल साइज बताओ भाई, ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, क्या स्टोरी है, ठीक है। नाउ प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर माय डियर प्रोटॉन्स आर्मी, ठीक है। अब कोलोइड्स और सस्पेंशन से क्वेश्चंस आते ही हैं, सो वी हैव दिस होल चार्ट ओवर हियर वेयर यू कैन सी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन, ठीक है। नाउ अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं तो सबसे जो लेस वैल्यू है, लेस देन 1 नैनोमीटर, वो होता है सोल्यूशन का, ठीक है। 1 to 100 नैनोमीटर आपका होता है कोलोइड का। सस्पेंशन का सबसे ज्यादा पार्टिकल साइज है, दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। अब मैं अपीयरेंस की बात करूं, ये बड़ा क्लियर दिखता है भाई, सोल्यूशन बड़ा क्लियर आपको दिखेगा, कोलोइड और सस्पेंशन दोनों क्लाउडी होते हैं, ठीक है।
अब होमोजीनियस होगा कि हेट्रोजीनियस होगा? सो सोल्यूशन इज होमोजीनियस, पहला वाला होमोजीनियस होगा, तभी आपको क्लियर सोल्यूशन दिखती है, ठीक है। अब ये होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है, लास्ट वाला भाई सेट है उसका कि वो हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? देन व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, फर्स्ट वाला इज ट्रांसपेरेंट बट ऑफन कलर्ड, ठीक है, सोल्यूशन मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं बट दे आर एक्चुअली कलर्ड। सेकेंड वाला है कि दे आर ऑफन ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक बट कैन बी ट्रांसपेरेंट। लास्ट वाला है ऑफन ओपेक बट कैन बी ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब सेपरेशन, ये सेपरेट, इसके पार्टिकल सेपरेट होते हैं कि नहीं? सोल्यूशन के डज नॉट सेपरेट, इसके भी डज नॉट सेपरेट, सस्पेंशन के सेपरेट्स और सेटल्स, ठीक है। क्लियर एवरीवन? नाउ फिल्टरेबिलिटी, इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। Yes, this passes through filter paper. This also passes through filter paper. For this one, particles do not pass through filter paper. So that is the difference between solution, colloid and suspension. Very, very important. ठीक है? चलो. Now this again from colloids and suspension. Dispersed phase और dispersion medium. इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अगर बता दो स्मोक में डिस्पर्स्ड फेस क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पार्ट ऑल्सो क्वेश्चंस डेफिनेटली कम, सो मेक श्योर यू एक्चुअली गो अहेड विद दिस वन। ये एक आप नोट कर लो, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया स्मोक, ठीक है, आई कैन आस्क यू कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम बताओ भाई इसमें क्या है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस, so this again is very, very important. Chalo. Now we have the next question. What is the difference between suspension and colloids? Arrange true solution, suspension and colloid in the decreasing order of the size of the particles. So just now we have discussed, है ना, वो टेबल बड़ा सुंदर सा टेबल पढ़ाया है मैम ने अभी, कि आपको सबसे पहले तो बताना है भाई कि सस्पेंशन और कोलोइड में डिफरेंस क्या है, ये कर लोगे? हाँ, सस्पेंशन और कोलोइड के बीच में डिफरेंस क्या है, और आपको पार्ट ये तो कर लेना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, होमवर्क ले लो, ये कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरेंज ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलोइड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा, ठीक है, ये चीज सस्पेंशन और कोलोइड के बीच में डिफरेंस ये है, ठीक है, कि आपको पता है कि सस्पेंशन इज एक्चुअली अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलोइडल सॉल्यूशन दे एक्चुअली अपीयर एज होमोजीनियस बट इट कैन एग्जिस्ट एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एज वेल, ठीक है। अब पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली मोर देन 100 नैनोमीटर पड़ा था, दैट इज इन द केस ऑफ सस्पेंशन, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है जी, ठीक है। Settling down, particles can settle down under the influence of gravity if the setting process is not disturbed. Settling process is not disturbed. अगर आप particles को ऐसे छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, you do not disturb it, particles can settle down, ठीक है। In the case of colloid, it does not settle down, ठीक है। The particles of colloid do not settle down, ठीक है। Then we have filtration. So particles cannot pass through a filter paper, ठीक है। In the case of colloid, particles can pass through a filter paper. Clear everyone? Chalo. Now when we talk about optical properties, this is opaque because it cannot transmit light. When we talk about colloids, they can be opaque or translucent because they can scatter light. ठीक है? Clear everyone? Now we had the next question कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है साइज ऑफ पार्टिकल्स का। सो बेसिकली सबसे बड़ा साइज ऑफ पार्टिकल होता है सस्पेंशन का, ओके, उसके बाद आता है आपका कोलोइड और सबसे छोटा साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है आपका ट्रू सोल्यूशन का, दैट वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई विल जस्ट शो यू वंस, ठीक है। ये देख लो, सबसे ज्यादा है मोर देन 100 नैनोमीटर किसका है, आपका सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोलोइड, उसके बाद आता है आपका ट्रू सोल्यूशन। तो इसका मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ कि सबसे SCS, ठीक है, सबसे पहले है सस्पेंशन, फिर कोलोइड, फिर सोल्यूशन, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। क्लियर एवरीवन? लेट्स गो, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसी से ही आएंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल, है ना। चलो, आई होप ऑल ऑफ यू नोटिंग डाउन एंड रिवाइजिंग साइमल्टेनियसली। चलो भाई, अब पहुंच गए हम टुवर्ड्स द एंड।
विच इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमें पता है कि भाई सॉलिड टू लिक्विड पॉसिबल है चेंज होना, लिक्विड टू गैस भी पॉसिबल है, सॉलिड टू गैस भी पॉसिबल है, गैस टू सॉलिड भी पॉसिबल है। सो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमें पता है दिस इज एक्चुअली सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, नाउ yes, so from solid to liquid if it is getting converted, that is called as melting. Okay, solid to liquid if it is getting converted, that is called as melting. अब लिक्विड पानी से अगर वापस से बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड हो गया आपका फ्रीजिंग। चलो, अब लिक्विड टू गैस अगर हो रहा है चेंज, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। लिक्विड टू गैस अगर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ठीक है, अब गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साथ साथ में लिख रहे हो ना एवरीवन, आई बिलीव माई प्रोटॉन्स आर्मी इज राइटिंग एवरीथिंग। ठीक है, अब सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द टर्म्स कि भाई अगर मैं पूछूं सब्लिमेशन, ठीक है, आपने कैम्फर देखा होगा। ठीक है, द मोमेंट यू लाइक बर्न इट, इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो ये नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, नाउ दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड कि स्टार्टिंग में कि भाई हाँ सॉलिड टू लिक्विड भी कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस भी कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड टू गैस भी पॉसिबल है, गैस टू सॉलिड भी पॉसिबल है। Now very important thing, this is the graph between heat supplied and the temperature. ठीक है, now this is the solid form which will be ice. Now we have a very important thing which is the latent heat of fusion. ये भी एक बड़ा fancy सा term है, latent heat of fusion. Okay, तो ये basically in this case what happens, solid turns to liquid. In latent heat of fusion, solid turns to liquid. Okay, the temperature remains constant. ठीक है, now when we talk about latent heat of vaporization, again the liquid turns into gas. ठीक है, आपको जैसे कि मैंने फ्यूजन बोला तो उसमें समझ में आना चाहिए कि हाँ सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है। अगर मैंने वेपराइजेशन बोला तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर से ऑब्वियसली डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन कर लें। हाँ, माई प्रोटॉन्स आर्मी, अब तक आई थिंक आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट। येस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और आपको ये बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया गया है, आपको ABCDEF आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, so ma'am will help you, है ना? You can pause the video and you can try solving it. Now, what are the two conditions for the interconversion of states of matter? So, the two very important factors which play a role in interconversion is first is the temperature, ठीक है, and pressure of the substance. So, pressure important है and temperature important है for the interconversion of the states of matter. ठीक है, अभी भी हमने पढ़ा latent heat of fusion, latent heat of vaporization में pressure and temperature very very important. ठीक है, अब थोड़ा सा ये वाले में जाते हैं हम। ABCDEF बताना है। ठीक है, A से F तक सब पूछ लिया। चलो, तो मैम विल डू इट। ए बता दूं पहले। ठीक है, तो A में क्या हो रहा है, सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो क्या बोलते हैं हम, यू कैन कॉल इट फ्यूजन, यू कैन कॉल इट मेल्टिंग। ठीक है, फ्यूजन और मेल्टिंग। नाउ लिक्विड से बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड, सो दैट इज डी, राइट। तो चलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। ठीक है ना। तो बी क्या है हमारा, लिक्विड टू गैस, सो दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, है ना। आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग दिस, है ना। सी, नाउ व्हाट इज सी,
gas is actually converted to liquid state, that is called as condensation, that is called as condensation. ठीक है, liquid is getting converted to solid, हाँ, liquid is getting converted to solid, so this is called as solidification. ठीक है, ये लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट क्वेश्चंस लाइक दिस. ABCD हो गया, EF बचा. अब E में solid is getting converted directly to gaseous form. ठीक है, so that is called as sublimation. कैम्फर का एग्जाम्पल दिया है ना मैम ने. ठीक है, solid is directly getting converted into gaseous form, so that is called as sublimation. Then we have the last one in which gas is getting converted into solid, so that is called as deposition. That is called as deposition. Okay, all good everyone. ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपने अच्छे से कर ली, thoroughly रिवाइज कर ली. सो बेसिकली आपके 20 मार्क्स गारंटीड है, ये नहीं कि सिर्फ 20 मार्क्स. ऑब्वियसली हाउ मेनी, जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, यू हैव टू स्कोर, ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव फाउंड टुडेज सेशन यूजफुल. सो व्हाट वी हैव रिवाइज्ड इन टुडेज सेशन, लेट मी जस्ट क्विकली recap. We have talked about chemical formula, we have talked about electronic configurations and valency, molecular mass and formula unit mass का calculation we have discussed, interconversion of states of matter. ठीक है, उसमें solution, colloids and suspension, solution, colloids and suspension. So that was it for today's session students. I hope आप सबको मज़ा आया होगा और आपके सारे concepts revise हो गए होंगे, and you have definitely liked, shared and subscribed to channel, to your most beloved platform, that is Vedantu. Thank you so much everyone. Bye bye. Happy learning.